Good evening, everyone. Hope you're all doing well. I'm Ruchita, your host. Tonight, we bring to you an insightful session on all about weight management: what, when, and how much to eat. And most importantly, the role of nutrition in weight loss. A lot of us try to lose weight by omitting important factors in our diet, which are very, very essential. Is that really the correct way to lose fat? Let's find out. To walk us through, we have two very esteemed speakers with us tonight. It's my honor and privilege to invite Farooq Tarapur to start the session. He's an Olympian, a two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 plus years. He's won innumerable awards like Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a flag bearer on this journey with a mission: Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him, guys. It's very, very important session tonight. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone, and welcome to this exciting Monday session. Today, we are going to be focusing on weight management. Now, generally, what I've noticed is that most people, end up losing a few kilos here and there, and then they go back to, their original. And that's normal because when there's a calorie deficit, you will lose weight. All right. But the more important thing in weight management is your mindset. If your mindset does not change, and nothing changes then. So it is very, very critical to understand that you need to, change your mindset. You need to understand what exactly goes into reducing weight and what needs to be done to keep the weight at that level. So there is something known as a weight loss journey. There is something known as a stabilizing journey. And then you embark on another journey of how to lose weight. Many people, when they plateau, they get a little bit discouraged. It's okay. It's very normal to plateau. But it is not okay if you don't have your goal right. Get your goals right. Understand the whole principle. Understand the concepts about exactly the role of nutrition, supplementation, meal replacement, and the exercise that you need to do to ensure that you're not only losing weight, but you're converting your fat into muscle. You're losing inches around you. And when you do that, basically your holistic health improves. And when your holistic health improves, all your lifestyle challenges, all the lifestyle problems like BP, diabetes, thyroid, you name it, all that seems to sort of disappear in a very short, very short time. So focus today properly, because you're going to be listening from somebody who's not only lost some weight, he's maintained it and has inspired a lot of people into embarking on this health journey and ensuring that they are also, at the right BMI, they have lost the fat correctly, they've got the muscle in the right place. So listen to Raj very carefully, because what he has to say might have a tremendous impact on your holistic health. So over to you, Raj. Thank you. Thank you very much, Farooq. And thanks for bringing on those points because they are very relevant and important. Farooq spoke about weight management, and that's the topic for this evening. And I'm very excited about this topic because अगर आज आप social media में देखो, internet पे देखो, everybody is talking about this program, some or the other type of program. Recently, I was reading an article where they said that one such program got a funding of something around 100 crore rupees. And now they're trying to set up this whole organization. But जब भी मैं ये articles को पढ़ता हूँ, and when I compare this program, like the approach what Farooq has about this program, it's completely different. And as he rightly said, that this is not only about weight management, it is also about the mindset and the other behaviors that you pick up. So आइए देखते हैं. One second, let me put up the slides. Yeah.
So best of health, best of fitness, healthy weight management. So weight management important क्यों है और यहाँ पे जो आप देखने वाले हो, why do we call it a holistic health program? You know, this is not only about, as Farooq rightly said, this is not only about losing some kilograms here and there. It is also about setting up the right mindset, setting up the right habits, behavior, because the end objective है, वो objective ये है that your health span should go hand in hand with your lifespan. So factors that contribute to overweight and obesity is like, what are these factors? It is genetic. इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ मेरे को ये सवाल कुछ पूछ रही थी कि जर्मन्स में ऐसा क्यों होता है और इंडियंस में ऐसा क्यों नहीं होता है. एंड आई टोल्ड हर दैट वन ऑफ द रीजन इज आर जेनेटिक एंड आर हैबिट्स. Second is health condition, not getting good quality sleep. Post COVID, sleep disorders have become a major challenge in today's world, you know, in today's time. Lack of physical activity, very true. I mean, you know, in this sedentary lifestyle जो आज के तारीख में हो रही है, कहीं ना कहीं जो हमारी physical activity है ये एकदम ही कम हो गई है. So poor gut health, unhealthy eating habits, nutrient deficiency, high amount of stress, medicine and environmental factors. These are some of the factors that contribute to our overweight and obesity. Some unknown facts. India has the third largest obese population in the world after USA and China, as per the WHO Health Organization estimates. Earlier, our obesity was only in the urban population. Abhi recently, I had an opportunity of visiting some of the rural parts of India, and I could see, you know, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो अब वीकनेस बनते जा रही है. नाउ पीपल आर लाइक लेस फिजिकली एक्टिव, कम हो रहे हैं. इवन इन द रूरल एरियाज अगर आप देखिए तो वेट एक मेजर चैलेंज होते जा रहा है. 1 out of 4 women and 1 out of 5 men are overweight in India. Annual increase in adult obesity. So these are like some of the facts, you know, that how our obesity percentage is increasing day by day. एंड इसको सबसे अच्छा देखने का तरीका है कि पहले अगर आप पार्क में देखो, बच्चे आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन आप वो गेम जोन और ऐसी सब जगहों में देखो तो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे. यू नो, सो दिस इज वेयर आवर हैबिट्स हैव इन अ वे दे हैव चेंज्ड. नाउ वेट मैनेजमेंट के कुछ पैरामीटर्स है. यू नो, सिर्फ एक लो वेट इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ अ हेल्दी वेट. यू नो, सो देर इज समथिंग कि आपको पता कैसे चले व्हाट आर दिस पैरामीटर्स. सो वन पैरामीटर होता है बीएमआई एंड द सेकंड पैरामीटर इज योर वेस्ट टू हिप रेशियो. ये दो पैरामीटर होते हैं जो कि इंडिकेशन होते हैं आपके ओवरवेट का. Like when your BMI, like body mass index, is less than 18.5%, 18.5, you are underweight. Normal range is 18.5 to 24.9. Although ये जो 24.9 है ये global standard है, इंडिया के लिए the right relevant standard is 18.5 to 23. And overweight category is anything above 25 to 30, and obesity is above 30 to almost 40. And greater than 40 is extreme obesity. So ये parameter है BMI, which is weight in kilogram divided by height in meter square. ये जो पैरामीटर है ये एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है और कितना होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू सेट अप अ राइट हेल्थ गोल. यू नो, पहले जब मैं स्टैट्स को देखता था मुझे ऐसा लगता था अरे 24 होना चाहिए, 26-27 से क्या फर्क पड़ता है. बाद में पता चला वो जो छोटा सा इंडिकेशन है वो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज को इनवाइट करता है. एंड हेंस वन नीड्स टू बी इन द राइट ब्रैकेट, दैट इज एनीथिंग बिटवीन 18.5 से लेकर 23. दैट नीड्स टू बी अ राइट वेट गोल. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो विच इज़ योर वेस्ट टू हिप रेशियो. जो भी आपके हेल्थ बड़ी है वो डिटेल में ही आपके एनालिसिस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट शुड बी अ राइट वेट गोल आपके लिए क्या होना चाहिए. लेफ्ट में जो आप फिगर देख रहे हो ये एक ओबीस पर्सन वर्सेस एक नॉर्मल पर्सन का इंडिकेशन है. अगर आप लेफ्ट वाला देखो, यहाँ पे वो स्टैट्स नहीं है बट ये दोनों के फिगर सेम है, विच मीन्स देव गॉट द सेम हाइट, देव गॉट द सेम वेट. बट अगर आप यहाँ उनका फैट परसेंटेज देखेंगे, जो ऑरेंज में आप देख रहे हो, जो येलो में आप देख रहे हो, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. यू नो, although both the individuals have got the same height, same weight, probably the same BMI, but अगर आप उनका fat percentage देखेंगे तो different है. And obviously you can make out that one needs to have a healthy muscle and a low fat, because जो fat होता है that is what puts pressure on your bones. आपकी बॉडी बल्कि लगेगी. और अगर आप जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आप ऑरेंज वाला येलो वाला जो इमेज आप देख रहे हो उसमें आप देखो तो द पर्सन इज गॉट अ वीकर बोन. So what you will understand over here is how to set the right parameters for your health goal. You know, that's the best part about this whole thing.
Now, the hidden dangers of overweight and obesity. मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि अगर आप 1 kg ओवरवेट हो, so your heart has to pump 2,500 kilometers of extra blood. Now that's the impact or the pressure that it puts on your heart. So definitely obesity causes cardiovascular diseases. Diabetes 100% is a root cause of obesity. मस्क जो आपकी मसल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है. हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पीसीओडी एंड पीसीओएस. पीसीओएस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन जो आजकल हमको सुनने को मिलता है. सो दिस आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी. इसके अलावा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज जितना भी वेट है आपका एक्स्ट्रा, समवेयर इट इज पुटिंग अ प्रेशर ऑन योर हार्ट हेल्थ, एंड हेंस वो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होती है. Now, physical consequences of excess weight, risk of fracture. जो मैं वो ऑरेंज एंड येलो वाला जो इमेज दिखा रहा था आपको, जैसे कैसे वो बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, एंड द पर्सन हु इज ओबीस, देव गॉट अ वीकर बोन, रिड्यूस बॉडी मूवमेंट्स, फटीग एंड लेथार्जी. आई मीन ओबीस, you don't find them very excited, and I mean कहीं ना कहीं lethargy feeling रहती है, and low fitness level. So these are some of the physical consequences of excess weight. Now, psychological consequences क्या होता है? Mood fluctuation, body image issues, socio-economic burden, low motivation, quality of life, skin related issues, like आपके मूड अच्छे नहीं रहेंगे, आपके अंदर वो इरिटेटेड, मतलब आप इरिटेटेड ज्यादा रहोगे अगर आप देखोगे तो, राइट. स्लीप प्रॉब्लम्स रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेगा, स्लीप एपनिया रहेगा, विच इज लाइक अ मेजर कॉज दिस डेज, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टुडे. सो बेनिफिट ऑफ हेल्दी वेट. सो उसका ऑपोजिट अगर 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 आप देखेंगे कि हेल्दी वेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं. रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, boost energy levels and physical mobility, improves mental and mood health, enhances overall quality of life. So कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो लगता जरूर है कि थोड़ा सा वेट ज्यादा है, बट अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ के ऊपर, एंड ऑल्सो ऑन आवर हेल्थ पैरामीटर्स. Uh, Also, what matters, yeah, what contributes to our weight is the time at which we eat. So अगर आप दिन में खा रहे हैं, which is like sunrise to sunset, आपका metabolic rate high होता है. This is the time one should eat food, and post sunset we should avoid eating any type of food. Uh, so राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम हम कितने बजे खाना खाते हैं. मोस्ट ऑफ अस, वी टेंड टू स्किप आवर ब्रेकफास्ट एंड वी टेंड टू हैव अ हेल्दी डिनर, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फैमिली टाइम. बिकॉज मॉर्निंग, सिंस वी नीड टू गो टू आवर ऑफिस एंड फॉर द वर्क, टाइम नहीं होता मॉर्निंग में, एंड मोस्ट ऑफ अस टेंड टू स्किप द ब्रेकफास्ट. एंड बिकॉज शाम को हम सब घर आते हैं, एंड दैट्स द टाइम वी गेट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली. एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, लाइक जिनकी वाइफ को अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ, या फैमिली में जब भी ये बात होती है, उनका एक ऑब्वियस रिएक्शन आता है कि नो नो, इवनिंग वी गेट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, एंड हेंस डिनर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. बट आइडियली इफ अगर आप देखो, सो मॉर्निंग शुड बी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. इवनिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए खाने को. Now that brings us to the next slide, like why morning nutrition is important in weight management. First and foremost, मैं without even looking at this slide, I can tell you, because रात को आपका जो metabolic rate है वो drop हो जाता है, and body gets into the repair mode. And because body repair mode में जाती है, जो आपका digestion system है, जो digestive process है, वो slow down हो जाता है. So रात को अगर आप खाना खा रहे हो, so पूरा digest नहीं होता ढंग से, और सुबह उठ के अगर आप देखोगे, सो आपका जो डायबिटिक वैल्यू है वो भी हाई मिलेगा अगर आप रात को डिनर कर रहे हो. दैट्स पॉइंट नंबर वन. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बॉडी रात को रिपेयर मोड में जाती है. बॉडी रिपेयर, हमारा जो सेलुलर डैमेज होता है बॉडी उसको रिपेयर करती है. सो अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन गेट्स एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है बॉडी का. एंड बिकॉज जो न्यूट्रिएंट है एब्जॉर्ब होता है मॉर्निंग में, व्हेन वी गेट अप, we are very low on a nutrient level and the protein level, etc. So morning का जो meal है, the first meal within 2 hours when you get up, the first meal is the most important meal, which should be rich in your protein, omega-3 fatty acid, and all the vitamin and mineral, and hence that becomes the most important meal. सो अगर आप सिर्फ ये एक पॉइंट को अगर आज आप यहां से लेके जा सकते हो, नॉट ओनली ऑफ वेट मैनेजमेंट, इनफैक्ट आप देखोगे आपके सारे हेल्थ पैरामीटर में इसका बहुत बड़ा असर होएगा. हमारा जो पैनक्रियाज है, जो हमारा लीवर हेल्थ है,
सिर्फ रात की मील जो अवॉइड कर सको और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम पे ले सको, अगर आप सिर्फ इतना सा भी चेंज लाएंगे, आप देखेंगे not only you've got a perfect weight, you'll also see a significant impact on your other health parameters, be it your liver profile, liver health, और बाकी सारे पैरामीटर्स को देखोगे, it will be absolutely perfect. So this is very very important to know that मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो रिच इन न्यूट्रिशन होना चाहिए, रिच इन प्रोटीन होना चाहिए, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर आपको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए. मैक्सिमम इन द इंडियन हाउस होल्ड्स व्हाट वी गेट टू सी इज, नॉर्मली जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही स्किप्ड होता है, या हम जस्ट ऐसी कुछ भी खा लेते हैं. मतलब इट्स नॉट अ वेरी healthy or a calculated breakfast that we eat, and that's the most important reason that why morning nutrition is the most important, not only in your health, also in your weight management. Second, the second most important is how much you eat, So one is when you eat, second is how much you eat. Now for weight loss, अगर आप देखिए, so जो कैलोरी आप intake कर रहे हो और जो कैलोरी burn कर रहे हो, obviously your output needs to be more than your input. Now जो food का जो output होता है, जो कैलोरी बर्न करता है, वो 3 तरीके से होता है. नाउ 70% जो आप देखते हो, दैट इज योर मेटाबॉलिक रेट. आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कितना है, कितनी कैलोरी वो बर्न करता है, वो कैलकुलेट होता है. द सिंपल वे टू इंक्रीज योर बीएमआर इज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गो फॉर गेट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज. एंड जब भी आप ये फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, मॉर्निंग वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आप देखेंगे ग्रेजुअली जो आपका बीएमआर है वो भी इंप्रूव होता है. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बॉडी कैलोरी बर्न करती है इज थ्रू ईट. नाउ 5% जो आपकी कैलोरीज है वो ईट के थ्रू बर्न होती है. नाउ ईट डजंट मीन व्हाट यू ईट ओवर हियर. ईट मीन्स इज एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. सो जो आप एक्सरसाइज करते हो उससे 5% बर्न करता है. नीट which is non-exercise activity thermogenesis, which is almost 15%. So what does it mean? What is NEAT? NEAT means not a proper exercise, but जो हमारे दिन भर में जो physical activity होती है. So that is what is NEAT. And then the type of food that you eat, which is TEF, thermic effect of food, that is 10%. इसके ऊपर अलग से सेशन होगा that what is NEAT, what is EAT, what is TEF. TEF का मतलब है that food selection that we do is that contributes to almost 10% of the calorie burn. Like for example, maida versus ज्वार की रोटी. Now, ज्वार की roti will consume more calories in digestion compared to refined flour, So this is what it means. And for weight maintenance, your calorie intake can be equal to calorie output. So that is where it is very, very important to know how much you are eating and how much you are burning. Now, what do you eat basically? So this also brings, so the type of food that we eat also defines our cellular health, our muscle strength, our fat level in the body, and our overall body structure, So अगर आप इसको देखिए कि अगर एक diet है which is rich in protein, fiber, vitamins, minerals, they provide your body with the essential nutrient to maintain a healthy weight and promote overall health. So इस प्रोग्राम में जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखोगे कि जो हमारे हेल्थ बडीज हैं वो आपके फूड प्लेट पे आपको गाइड करते हैं, एंड दे ट्राई टू ऐड वैल्यू टू योर फूड प्लेट ऑफ व्हाट यू हैव बीन ईटिंग, एंड हाउ द सेम प्लेट को आप बेटर कर सकते हो, एंड हेंस इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. जो भी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, यू विल सी दैट हाउ दिस लिटिल स्टेप्स आर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, एंड हाउ वी आर हेल्पिंग देम टू हैव अ हेल्दी लाइफ, not only in terms of weight management, but also in their overall other aspects, like be it the sugar level or the blood pressure, and the other aspects में भी इसका असर होता है. So this is how ideal plate should look like, that 13%. So ये एक example है जो एक ideal plate कैसे दिखना चाहिए. Now अगर आप इसको देखिए, so almost 50% of the plate is your fruits and vegetables. So colors आप देखो इसमें. Now this is the importance of having a colorful plate, which has almost 50% of fruits and vegetables. 7% अगर आप देखेंगे तो इसमें pulse है. 25% of the thing is milk and curd, because curd is very good for your for your gut health. Nuts and seeds, fats, oils, अगर आप ये देखिए, so this is how एक ideal plate should look like, and this is what you get to learn in that WhatsApp community that we have created, where our health buddies and our nutritionists are recommending कि आपकी plate कैसे होनी चाहिए,
So how important protein supports in the weight? Protein का role क्या है? You know, your body is made out of like बाल से लेके पैर के nails तक, everything is made out of protein. And protein एक ऐसा nutrient है जो body आज का कल पे carry forward नहीं करता. One needs almost one gram to 1.5 grams of protein per kg body weight. So अगर आपका protein intake perfect है, so आप देखेंगे कि आपकी सैटिस्फैक्शन इंप्रूव रहेगी, आपको क्रेविंग्स नहीं होएगा, एंड ये जो अर्ज होती है बार बार खाने की, ये कम हो जाएगी. एंड ऑब्वियसली अगर आपके बॉडी में प्रोटीन है तो जो आपको जो फुलनेस वाली फीलिंग लगेगी, योर मसल स्ट्रेंथ विल इंप्रूव, योर ओवरऑल स्टेमिना विल इंप्रूव, एंड यू विल सी दैट आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें भी आप चेंजेस देखोगे. सो प्रोटीन रिच डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थर्मोजेनेसिस इंप्रूव करता है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमारे जो फोर फादर हुआ करते थे, अगर आप उसको देखिए, उनको देखिए, तो दे वर वेरी लाइक प्रोटीन रिच फूड, तब बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था. सटाइटी में ये इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिक पाथवेज, रेस्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर, जब हम रेस्ट करते हैं तो बॉडी जो एनर्जी कंज्यूम करती है उसको इंप्रूव करता है. ठीक है, प्रमोट इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा. सो प्रोटीन का जो रोल है, स्पेशली इन योर मॉर्निंग न्यूट्रिशन, वन नीड्स टू हैव अ गोल दैट आपकी जो बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 50% उसका आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पूरा कर लीजिए. बिकॉज अगर आपके दिन भर का प्रोटीन जो आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर होने वाला है, जो पूरे दिन में जब हम काम पे जाते हैं, दैट इज व्हेन द बॉडी नीड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एंड इफ वन कैन फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट, अगर आप उसको ब्रेकफास्ट से लेके 12 बजे तक अगर आप फुलफिल कर लीजिए, देन यू सी हाउ ग्रेट हेल्थ यू विल एंजॉय, राइट. सो फाइबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बेसिकली फाइबर का जो रोल है, ये हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करता है. एंड वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गट हेल्थ, आपका अगर गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप देखेंगे नॉट ओनली इन योर वेट मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, बी इट फूड क्रेविंग्स, बी इट योर शुगर लेवल, बी इट योर अदर लाइक योर डायबिटिक लेवल एंड द ब्लड शुगर लेवल इन योर ब्लड. ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इसमें प्ले करता है. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो सबसे ज्यादा मिसिंग एलिमेंट है हमारे डाइट में. सो तीन चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड फाइबर. दिस थ्री प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर रोल इन आवर हेल्थ. एंड फाइबर, हम थोड़ा सा सैलेड ले लेते हैं एंड वी फील दैट हमारा फाइबर रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है. सो फाइबर का जो सबसे मेन रोल है, ये आपके गट हेल्थ को स्ट्रांग रखता है. एंड वंस यू हैव अ गट स्ट्रांग गट हेल्थ, आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल हेल्थ में बहुत पॉजिटिवली इसका इंपैक्ट पड़ता है. सो गट हेल्थ, एंड हेंस गट हेल्थ को सेकेंड ब्रेन बोला जाता है, बिकॉज गट हेल्थ से सारा कुछ कंट्रोल होता है. यू नेम एनीथिंग, कोई भी बीमारी का आप नाम ले लीजिए, उसकी जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं आपके गट हेल्थ से होती है. और गट हेल्थ को जो हेल्दी रखता है, दैट्स फाइबर. सो फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वेट लॉस में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. सो हम अभी गट हेल्थ के बारे में बात करें. सो व्हाट्स गट हेल्थ? सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा गट होता है, इट हैज गॉट माइक्रोबायोम्स इन इट. सो देयर आर सम गुड बैक्टीरिया, देयर इज सम बैड बैक्टीरिया. नाउ विद द प्रैक्टिसेस दैट वी डू, now the ideal situation should be that your good bacteria is almost 85% and your bad bacteria are somewhere in the range of 15%. But because of the unhealthy habits that we build, उसके वजह से तो बैड बैक्टीरिया है ये ऊपर चला जाता है, ये ऑलमोस्ट 85% तक चला जाता है, और जो गुड बैक्टीरिया ये कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट, यू नेम एनीथिंग, बिकॉज ऑफ दिस बैड बैक्टीरिया, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जाता है, इससे आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे आपकी डायबिटिक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एंड वेट मैनेजमेंट, शुगर क्रेविंग, फूड क्रेविंग्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो वन नीड्स टू बी रियली केयरफुल अबाउट, वन नीड्स टू बी रियली केयरफुल कि हाउ टू improve our good bacteria. And habits like eating the food at a right time, not eating too much, जंक फूड नहीं खाने का, बाहर की चीजें नहीं खाने का, अगर आप ये सारे हैबिट्स देखेंगे, प्लान बेस्ड डाइट पे अगर आप ज्यादा हो, सो आप देखेंगे आपका गुड बैक्टीरिया इज गुड. एंड बिकॉज ऑफ द गुड बैक्टीरिया यू विल सी दैट नॉट ओनली इट impacts your weight management, but you will see other things, be it sugar level and all those other aspects also in control, you know. So it is very important to make the right healthy choices so that हमारा जो good bacteria है ये इंटैक्ट रहे एंड बैड बैक्टीरिया ऊपर नहीं जाए. दिस डेज अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम दिस चैलेंज ऑफ फैटी लिवर, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, प्री डायबिटिक हैं, और फिर भी ये चीज वो नहीं समझते, विच इज अ गुड एंड अ बैड बैक्टीरिया. So this is very important to know, and this is what you are going to learn in this program. So अभी तक आप ये चीज देख रहे हो that this program is not designed only to reduce your weight.
This program has got a holistic approach, a complete 360-degree approach. And इससे क्या होता है कि once you build the right habits, this is not something a 3-month program or a 5-month program. This is something like which you can adapt for the rest of the life. एंड द होल आइडिया जो फरोक का है कि हर घर तंदुरुस्त हर घर मेडिसिन फ्री, ये जो आप हैबिट्स बिल्ड करेंगे, इसको इसका जो बड़ा असर है आप 10 15 20 साल बाद देखोगे, जब आप अपने एज ब्रैकेट के लोगों को देखोगे दैट दे आर हैविंग लाइफस्टाइल चैलेंजेस एंड यू आर नॉट. सो दिस इज द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएट, यू नो. आप शुरुआत में फारूक को देख रहे थे. फारूक इज 64 years old now, and I know Farooq for almost, I know him closely since 2000, from the year 2000, right? 24 साल से मैंने उनको कभी नहीं देखा कि ये डायबिटीज और ऐसी सारी चीजों को लेके उनको कभी सोचने की भी जरूरत पड़ी थी. नाउ यू नो दिस इज द चॉइस दैट यू मेक. इनिशियली मुझे भी लगता था कि व्हाई डजंट ही ईट एनी स्वीट, एक लड्डू खा लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना भी क्या है. बट टुडे लाइक थैंक गॉड ही हैज मेड दोस राइट चॉइसेस, एंड बिकॉज ऑफ विच ही कैन लीड ऑल ऑफ अस इनटू दिस प्रोग्राम. एंड नॉट ओनली थ्रू दिस प्रोग्राम, इनफैक्ट उनसे हमको मदद मिल रही है कि कैसे हर घर तंदुरुस्त हर घर मेडिसिन फ्री. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो that what is the crux of this program. How vitamins and minerals help in weight management. You know, each of this vitamin and mineral, they've got a role to play in our body. और जब इसकी deficiency होती है, so आप देखेंगे कि body के जो organs है, जो cells है, वो properly function नहीं कर पाते. और because वो function नहीं कर पाते, so जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गया या जो बाकी सारी चीजें हो गई, आप देखेंगे उसमें इम्पैक्ट होने लगता है. सो जब आपका ऑप्टिमम लेवल ऑफ विटामिन और मिनरल्स होता है, सो व्हाट डज इट रिजल्ट इनटू? इट रिजल्ट्स इनटू एपेटाइट रेगुलेशन, adequate food intake, energy balance, optimum body function, and in a way weight loss and weight management, weight maintenance में इससे बहुत मदद होती है. लेकिन जब ये नहीं होता है तो उससे क्या होता है? हिडन हंगर, यू नो, जो क्रेविंग, जो अर्ज होती है खाने की, इंक्रीज एपेटाइट, हायर फूड इंटेक. हम खाते जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि क्या हमें इतने खाने की भी जरूरत हो, जो और अर्ज होती है खाने की, यू नो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये करके देखिएगा, हेल्दी डाइट जब आप खा रहे हो तो एक ना फुलनेस वाली फीलिंग आ जाती है. पर ट्राई समटाइम बर्गर, वो एक खाने के भी बाद में वो फुल नहीं फील होता है. यू फील लाइक ईटिंग वन मोर बर्गर एंड देन यू फील लाइक हैविंग अ कोला विद दैट. सो दैट्स हाउ यू गेट इनटू दैट. और अगर आपने बर्गर खा लिया, कोला भी पी लिया, उसके बाद फिर आइसक्रीम खाने का मन करता है. सो दैट इज व्हाट इट मींस, इंक्रीज एपिटाइट फॉर हायर फूड इनटेक, एनर्जी imbalances, disruptions of optimal function of the body, which leads finally to weight gain. What you eat, benefits of meal replacement, you know, especially अगर आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो. नाउ सिंपल तरीका जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि डाइट्स पे चले जाओ, बट फूड में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट इतना कम है जो बॉडी को एडुकेट नहीं मिलता. सी आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन एज पर द बॉडी वेट. So because of the increase in the body weight, your vitamin and mineral and the nutrition requirement is more. Now ऐसे सिचुएशन पे अगर लोग डाइट्स पे चले जाते हैं, इमेजिन करिए क्या होएगा. द बॉडी मी नीड्स न्यूट्रिशन, और वो हम ऑलरेडी खाने को कम कर दिए. एंड एनी विच वेज आज का जो फूड है उसमें एडुकेट, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द जीन मॉडिफाइड सीड्स, उसमें राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे भी बहुत कम हो चुका है. सो एज अ रिजल्ट क्या होता है? There is a gap, and this gap is what we call as a nutritional gap. Now as a result of this nutritional gap क्या होता है? हमारे बॉडी में फटीग वाली सिचुएशन आ जाती है. हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके जब आप अपना वेट मैनेजमेंट की तैयारी करो या अपने फूड की तैयारी करो, आई मीन बिल्डिंग द राइट फूड हैबिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो हमारी मदद करता है, दैट इज मील रिप्लेसमेंट. Now, meal replacement can be natural also, it can be synthetic also. Now, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम नेचुरल मील रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. इसका फायदा क्या होता है? ईज ऑफ एडहेरेंस. फॉर एग्जांपल, आपको वो एक्स्ट्रा कैलोरी खाने की जरूरत नहीं है, और बॉडी वो जो राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन है उससे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहा, वो कम भी नहीं कर रहा. सो योर बॉडी इज गेटिंग द राइट सेट ऑफ नरिशमेंट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द एक्सेस कैलोरीज दैट वन नीड्स टू ईट. सो कंट्रोल कैलोरीज, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, provision of adequate nutrient and satiety. So ये मील रिप्लेसमेंट के बेनिफिट्स हैं. नाउ फसाई का रेगुलेशन है इसके ऊपर, सो फूड सेफ्टी का रेगुलेशन है इसके ऊपर. व्हाट टाइप ऑफ मील रिप्लेसमेंट वन शुड टेक, ये नेचुरल होना चाहिए. इनफैक्ट इसमें फाइबर की एडुकेट कंटेंट होनी चाहिए, विटामिन एंड मिनरल होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, एंड योर एनर्जी लेवल नीड्स टू बी देयर. यू नो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं अगर हम उसी को कट डाउन कर लें तो क्या वो चीज़ होएगा. यू नो, उससे आपका फूड कट डाउन तो हो जाएगा, बट न्यूट्रिशन
रिडक्शन भी बहुत मेजर लेवल पे हो जाता है, एंड जिसके वजह से फटीगनेस होती है और अब बहुत दिन तक आप उस प्रोग्राम को सस्टेन नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द विटामिन एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट, बिकॉज अगर बॉडी को वो मिलता रहेगा सो बॉडी फंक्शंस नॉर्मली करता है। सो ये फसाई के रेगुलेशंस है कि कैसा होना चाहिए। नाउ थैंकफुली थ्रू न्यूट्रालाइट वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट मील रिप्लेसमेंट, ये which you can take along with protein and fiber. So ये जो मील रिप्लेसमेंट है, इसका लेबल अगर आप पढ़ेंगे तो ये एब्सोल्युटली नेचुरल है, और इसमें विटामिन की वो राइट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए। सो हेंस आप आप डेफिशिएट भी नहीं हो रहे, एट द सेम टाइम यू आर मैनेजिंग। इसका और एक फायदा है, अगर आप एक ऐसे जॉब में हो जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हो या आपको नहीं लग रहा कि आप हेल्दी मील ले सकते हो, आपको होटल में खाने की जरूरत है, वहां पे ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट का काम करता है। thirdly, if you feel that you've got late night sitting and somewhere because of a job profile आपको क्रेविंग्स हो जाती है, दैट इज द टाइम ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट का काम करता है वहां पे। सो डोंट टेक इट लाइक माय सन, जब वो क्रिकेट खेलने जाता था, सो वी यूज्ड टू गिव हिम दिस एज अ सब्स्टिट्यूट जब वो क्रिकेट खेल के आ रहा होता था। सो दिस इज लाइक अ ब्रिलियंट मील रिप्लेसमेंट, इनफैक्ट जिसको आप ऐसे भी ले सकते हो, बिकॉज इसकी न्यूट्रिशन कंटेंट एब्सोल्युटली परफेक्ट है जो हमारे को चाहिए। सो एक मील में जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ये वो उसको पूरी करता है, यू नो। Now, earlier, during my early days, I used to eat वड़ा पाव थिंकिंग कि क्या फर्क पड़ता है, पेट ही तो भरना है लंच टाइम में। और जल्दी जल्दी में कई बार ऐसा होता था कि ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ एक सैंडविच खा लेता था या वड़ा पाव खा लेता था। नाउ यू नो दैट वड़ा पाव में वो न्यूट्रिशन नहीं है, या कई बार आपने बस ऐसे चलते चलते दो इडली और थोड़ा सा चटनी ले लिए। दिस इज द आइडियल स्टफ, यू नो। इसमें थोड़ा सा फ्रूट डाल दीजिए, इसको स्मूदी बना दीजिए, तो एक स्कूप प्रोटीन डाल दीजिए, एंड व्हेन यू कैलकुलेट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू स्टार्ट योर डे। बिकॉज मॉर्निंग का जो न्यूट्रिशन है वो एकदम एब्सोल्युटली बैलेंस करता है। इफ यू जस्ट ऐड सम फ्रूट्स टू इट, जस्ट ऐड अ स्कूप ऑफ प्रोटीन एंड अ स्कूप ऑफ फाइबर, एंड वंस यू सी दैट हाउ ब्रिलियंटली आपका सारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मॉर्निंग में पूरा हो जाता है। So this is what we have. Like this is also in two flavor. One is a coffee flavor and the other is in the vanilla flavor. So जिसको cold coffee पीने का शौक है आप इसको try करिए. I mean brilliant substitute and also with the right set of nutrition in it. So clean label. Now clean label का क्या मतलब होता है? इसमें कोई added preservative नहीं है, इसमें कोई artificial color नहीं है और कोई artificial flavor नहीं डाला गया है। इनफैक्ट अगर आप इसके लेबल को पढ़ोगे तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम जो घर में कुक जो खाना कुक करते हैं कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा प्योर है। सो दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंड विद द राइट सेट ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन ब्रिज दैट न्यूट्रिशनल गैप, राइट। सो ये आप उसको नॉर्मली आई अवॉइड टेकिंग इट विद मिल्क, इट्स बेस्ट टू टेक विद अ स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर एंड वाटर एंड अ स्कूप ऑफ फाइबर इन इट। सो यू कैन मेक योर ओन रेसिपीज। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हो तो आप देखोगे बहुत सारे इनोवेटिव रेसिपी विद दिस। सो या, so vitamins and minerals our body needs. So now the second most important element in weight management, which is a vitamin and mineral intake. Our body needs 25 essential vitamins and minerals, you know, and each of this vitamin and mineral has got some very serious roles to play. So जब ये जो कमी हो जाती है, and that is what आपका सेल फंक्शंस उतना प्रॉपर नहीं होता, you know। देखिए हम खाना तो खाते हैं बट बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम ये सब कैलकुलेट करके खाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, ये गैप क्रिएट हो जाता है। Now, couple of years ago, the food was more pure. The fruits and vegetables were more pure. So हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि what is this gap all about. But today, if you feel our wear and tear is in the body is much higher, our stress level because of the job and other stuff is gone very, very high. So probably our body needs more vitamin and minerals and protein and other stuff to function on a day-to-day basis. So एक तरफ हमारी नीड बढ़ गई, दूसरी तरफ फूड की क्वालिटी ड्रॉप हो गई है। With the agricultural practices, gene modified seeds, the food that we eat has dropped, right? Third, हमारा food intake भी proportionately कम हो गया। my दादाजी must be having some 8-10 रोटी, वो जो हम उस जमाने में सुनते थे। Proportionately अब क्या हो रहा है, हमारा intake कम हो गया है। intake कम हो गया है, फूड की क्वालिटी ड्रॉप हो गई है, और हमारा यूज बढ़ गया है, which means our body needs more vitamin mineral to deal with the stress and other job pressures that we are into. So ये जो gap है, how do you balance this gap? And this is where your vitamin and minerals are most important thing. Or I mean, each of them has a role to play.
So, like for example, I'll not get into the details of each and everything, but this is what we need. So, I mean, I'll not get into all this details. Do get in touch with the person who's invited you. And अगर आप उस WhatsApp group में हो तो ये सारी चीज़ आप ऐसे ही समझोगे. So, you'll understand that how to bridge that nutritional gap. And the last and the most important is to understand what is low GI and low GL food. नाउ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक फूड का एक इंडेक्स होता है जहां पे आपको द ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू ऑफ ऑफ लाइक ये आपको समझ में आता है कि जो ग्लाइसेमिक लोड है कि अगर ये फूड आपके बॉडी में जा रहा है तो इसका शुगर लेवल कैसे स्पाइक करेगा और कैसे ड्रॉप करेगा एंड द मोस्ट आइडियल इज टू हैव अ लो जीएल फूड इन दिस डेज यू नो सो अगर आप सो व्हाट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड इन दिस प्रोग्राम ड्यूरिंग द वेट मैनेजमेंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट जीएल फूड because GL is more important. Earlier हम सिर्फ GI measure किया करते थे. In today's environment, our scientists have come up with this value of glycemic load, जो सारे factors को consider करता है एक food की quality कैसे होनी चाहिए. ठीक है. So this is also most important. So जो हमारा जो ये meal replacement है, this is low GI and low GL ये आता है. Now, benefits of planning. Now, the second most important is the most important element is how do you plan your meal in advance? Because it also इसके बहुत बेनिफिट है सो जब आप एडवांस में अपने मील को प्लान करेंगे आपका जो खाएंगे इट विल बी यू वन नीड्स टू कंसिडर एज अ कंट्रोल्ड पोर्शन रिड्यूस इंपल्स ईटिंग जो इंपल्स ईटिंग होती है जो क्रेविंग्स होती है उसको थोड़ा सा रोक के देखिए कि डू यू रियली नीड टू हैव दिस पहले मैं अगर एक लड्डू खाता था तो दूसरा तीसरा इंस्टेंटली खा लेता था अब वेरी रेयरली मैं थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा टुकड़ा खाता हूँ और मैं कुछ देर तक रुकता हूँ कि डू आई रियली हैव दैट अर्ज और अगर आप देखोगे कि इफ यू कैन कंट्रोल दैट फॉर अ स्लाइटली थोड़ी देर के लिए सो वो अर्ज खत्म हो जाती है एंड द सेकेंड बेस्ट वे टू इज टू रिड्यूस दैट अर्ज इज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर whenever you feel like eating something या वो क्रेविंग आती है पहले जाइए एक ग्लास पानी पी लीजिए थोड़ी देर रुकिए और देखिए वो अर्ज अपने आप सेटल हो जाएगी अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे अपने मील्स के बारे में अपने टाइमिंग के बारे में व्हाट फूड यू आर गोइंग टू ईट इट सेव्स योर टाइम एंड रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप प्लान नहीं हो सो बाय डिफॉल्ट जो कन्वीनियंट है वी एंड अप ईटिंग दैट we end up eating that. So it's cost effective, supports weight management goals, and promotes healthy habits. And that's the main important thing. You know what? The one thing again and again that you're going to learn in this program is to build healthy habits. And एक बार वो habits build हो जाती है, then it stays with you for the rest of the life. And the last slide, that shine every day, start every day with a gratitude and optimism, have your nutrition on time, intention, visualize and set clear intentions. This is one thing is very, very clear. One thing in our family was very clear. We don't want to fall sick. Like falling sick in our family is not acceptable. And like I'm 48 now, and I don't remember that मेरा OPD कहीं पे भी है in the last 20-25 years. So one needs to plan their health in advance. Otherwise, by default, though, we are a prey for the medical world. Learn something new. I hope you got something new. And if not, सिर्फ एक चीज लेके जाइए यहाँ से that one needs to eat between sunset and sunrise and sunset and not the other way around. Between sunset and sunrise and exercise daily. That's most important. So thank you very much. And over to Ruchita. Thank you so much, Raj, for explaining that so wonderfully. I hope now it's clear to everyone what to eat, when to eat, and how to eat, right? Like we began, but in much, much detail, and why it is important to keep our weight in check or even discuss about weight management and how it impacts our body. Since I see no questions from anyone, I think we'll close for tonight. Thank you, everyone. You've been a great audience. See you next Friday. Good night.